Jai Guruji. I'm Anita Kumar. Am I audible? First of all, it's important to know that this is clear. Can somebody send me a cue before I continue? Jai Guruji. Thank you. So, I think a lot of you have heard my satsang in recent days. There's been a lot of sharing. I guess this is the new normal now. We are sharing on Zoom, but Jai Guruji, whatever is hukam. As many of you know, Guruji has been incredibly gracious, and he is, he's showering us all with his grace. Like you said, chinta nahi chintan karni hai. So, chinta nahi karni hai. I know a lot of people are worrying in today's climate because it is a difficult climate. Like Guruji said, ek din bada mara time aa raha hai aur asli cheez mang lo, Rab ko lo Rabbi mang lo. And very few of us understood at that point what that really meant, because we used to come as mere mortals asking for very ordinary things. But he came to give us something extraordinary, and none of us were able to understand or comprehend what was the bigger picture. I think very few of us, if anyone, had the big picture perspective. Today, as we sit in the lockdown and we introspect and soul search, we realize that life has a deeper and a bigger meaning than we ever understood. So, like Guruji cured me of asthma, skin cancer, many issues, health issues. I had breast cancer 3 times, 3 tumors. But the point is, like he said, मेरे वास्ते asthma, diabetes, cancer ठीक करना तो मामूली चीज़ है, दोनों ठीक करना मुश्किल है. So by that he meant कि हम अपने कर्म नहीं सुधारते, हम अपने आप को नहीं सुधारते. We're on autopilot. We are living our lives on the treadmill of life. But now today, nature has forced us to slow down and to really reflect on what really matters in life. And he's simplified religion so much that it's not even funny. He's simplified it by, taking away, removing us of our superstitions. Like he said, मैं थोड़े वहम और अहम दोनों दूर करने आया. To see अपनी ego, he melts our ego, I feel, He melts our ego. He removes us from superstition. He removes us from the inessentials of, religion. Because in the end, it's not about religion. It's about the spiritual journey of each individual. Therefore, he always said, कि तुसी अपना direct connection बनाओ, soul to soul connection बनाओ. And that is the emphasis really, because, there are so many messages going around कि आप खीर बना लो, आपको COVID-19 नहीं होगा, आप ये कर लो, चाय पी लो, नमक डाल के, या जो भी, whatever it is. The point is, when we have a direct connection, then because there are no mediators, हम सत्संग भी सुनाते हैं तो अपनी महर सुना रहे हैं, गुरुजी के गुण गा रहे हैं. What all he has done for us. If I compare my life's canvas today, 2020 to what it was earlier, say 20 years ago or more, it's a total different. It's a huge contrast, and I'm sure everyone agrees that after 6 months, a year of coming to Guruji, connecting to Guruji, life just transforms. We transform our inner life, external life, everything just changes. So ye Guruji ka, it's the greatest grace, I feel, that when you are connected, it's a journey. So it may be a slow learning, it may be a fast learning. It depends on our previous karmas. If like one day he just said, I cried and I said, Guruji, मेरा कोई नहीं आता मेरे family में से, कोई भी नहीं आता. तो कहते कोई गाल नहीं, एक दिन आएगा, सब आएंगे देखी. And then he said, तेरे पिछले जन्म में होते ना संस्कार वधिया से, parents वही होते हैं, siblings वही होते हैं, लेकिन कभी कोई पहले आता है, कभी कोई बाद में आता है, because this is to do with your karmic journey and your lifetimes, incarnations of your
good deeds or whatever deeds you've done. So ये तो हमारी सबकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इस लॉकडाउन में हम फील ही नहीं कर रहे कि ये एक्चुअली लॉकडाउन है. हम सब देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व स्पिरिचुअली, टू ग्रो, टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स. अपने आप को बदलने का रियली एक मौका मिला है हमें, विच इज सो ब्यूटीफुल. बिकॉज हम सब ट्रेडमिल में थे, सब भाग रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, लिटरली इन द मेटाफोरिकली एंड लिटरली इन दिस होल लाइफ ट्रैक. एंड हम भाग रहे थे, सत्संग के लिए भी भागते थे. वो भी एक दौड़ ही हो गई थी, वो भी एक कॉम्पिटिशन ही होगा था, किसका सबसे बड़ा फूल का डेकोरेशन है, किसकी सबसे बड़ा लंगर अच्छा है. So it's just, I'll tell you one beautiful satsang. Somebody beautiful watching this has just reminded me. तो एक केक का सत्संग सुनाती हूँ, बिकॉज गुरुजी की महर तो किसी फॉर्म में आ सकती है. गुरुजी खुद ही किसी फॉर्म में आते हैं. तो गुरुजी तो कहते थे ना, मैं तो किधरे नहीं जा रहा, वो तो अपने संगत के लिए है. कभी माँ बाप कभी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाते हैं. They are always there for us. So it's like, in fact now more so, because it's the kind of need of the hour. For many of us it's a difficult time. For many of us we are observing this time as a spiritual time for us to grow, for us to get to know ourselves. We were running away from ourselves, from our truth. The truth only comes in silence. The truth only comes in solitude. So this is literally solitude confinement. I am in my room. I have Guruji's Sarup, and chota sa ek corner hi chahiye hota hai Guruji. I realize today you don't need anything. You just need him and you, and your connect and your love. That is the most beautiful thing, that we need only love in our heart, and that love gradually purifies our heart. Because in the end, Guruji used to say, मैं तोड़े दिल विच बसे हैं, तो दिल में बसे हैं, तो अपना मन भी साफ करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Going back to the cake satsang, what happened, I don't specifically remember the year, maybe it was 2012. Guruji had left his physical body, and what happened, I had a hysterectomy. And when I had the hysterectomy, I was hospitalized because, the point is, I was hospitalized because, although it's laparoscopic, but I had this excruciating pain for which I had to go back, and I did. And then the surgeon said, the doctor said rather, he said, you have sludge in the liver, you have, your bile duct is blocked, and you have stones of the gallbladder. So there was a bile duct was blocked, my liver had sludge, and there was stones in the gallbladder. So it was complicated. So I was hospitalized, and I was kept on intravenous antibiotics. Now I was there for about 10 days lying down, completely horizontal, I couldn't move. And I was just crying out to Guruji, and we all question. There's no way that our faith is constant, and it's it's constant and it's strong and it's courageous. It doesn't happen like that. None of us have infallible, unconditional faith. Faith wavers. So faith is sometimes a good day. Faith is sometimes having a not such a good day. So my 10 days were not so good, and I was crying out to Guruji, and I said, Guruji, na aapne apna sign diya, koi indication nahi di ki aap mere saath ho, itna aapka database बढ़ गया, itni संगत बढ़ गया, maybe you've forgotten me. And मैं रोने लग गई, and then I was very upset and distressed, and I said, ना कोई संगत में हमने आई है, आप तो कहते थे वो गुरु परिवार है, वो आपका परिवार, मेरा परिवार कहाँ गया? So I was missing and really craving for something from Guruji. चाहे चाय प्रसाद मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए गुरुजी का. आज भी हम वही तरसते हैं, बड़े मंदिर को क्यों याद करते हैं कि भाई लंगर खा ले, चाय प्रसाद पी लें, पर वो गुरुजी ने दिखा दिया, तुझे जो खांदे हो कार वो भी लंगर है, तुझे भोग लगा लो, चाय बनाओ अपने हाथों और वो भी भोग लगा लो, वही चाय प्रसाद है. तो वो गुरुजी ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया हमारी लाइफ को कि कितना अच्छा लगता है कि हमें अच्छी इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती. मैं तो दुबई में, ये भी एक सत्संग है, कैसे आई, कभी फरवरी में, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, कभी फरवरी में मैं कभी नहीं इंडिया छोड़ा, बिकॉज दिल्ली की टेम्परेचर ठीक ही होता है, मैं नॉर्मली समर में भागती हूँ, लेकिन फरवरी में मैंने कहा मैं अनुष्का को मिलाती हूँ, बड़ी वाली बेटी को, एंड दुबई, उसके बाद बाली चले जाऊंगी छोटी वाली को मिलना. तो ये गॉड, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. So it's not like our plans ever work.
It's all up to God, and therefore Guruji used to say, surrender kar jao. Coming back to my satsang, I was in hospital, and on the 10th day, it was a Thursday, and it was nearing evening, and suddenly two sangat walk in. एक थी सुमी कुमार, एक था रोहित कपूर. So दोनों आए ऐसे, और मैं तब तक बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी. I was very dejected, I felt very rejected, and I was just lying there. And suddenly they both came in. I should have been excited, but I just said, Jai Guruji, whatever, take a seat, meet me. I'm the patient. And suddenly Rohit बोला, sorry, आप सुनाई दे रही है? Sorry, थोड़ी सी soft है आवाज. आपको सुनाई दे रही है? Okay. तो एकदम फिर रोहित बोला, जैसे गुरुजी बोलते थे, गुरुजी के एक तरीका होता था, कहने चाय प्रसाद मंगवाओ. तो मैंने कहा रोहित ये हॉस्पिटल है, ये कोई मंदिर नहीं है, और यहाँ चाय प्रसाद नहीं है. तो कहते नहीं मंगवाओ आप चाय प्रसाद. So anyway, I called the cafeteria there, and वो चाय आई. तो मैंने कहा पी लो चाय. तो कहते दो सुमी एक केक ले आई, बहुत बड़ा केक लेके आई. एंड वो खोला तो मैंने कहा मैं तो नहीं खा सकती, आई हैव टू बी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, मेरा कल MRI है. तो कहती है, मैंने देखा तो जय गुरुजी लिखा हुआ. कहती है केक नहीं है, ये तेरा प्रसाद है, कुछ नहीं निकलेगा, तो सब ठीक हो जाएगा. एकदम डॉक्टर आते हैं अंदर, जो सर्जन जिसने मेरी परफॉर्म करनी थी. डे आफ्टर थर्सडे था, सैटरडे सर्जरी थी, और फ्राइडे मेरा MRI था, जस्ट टू रिकन्फर्म द होल टेस्ट. सो द सर्जन केम इन and he said, Anita, I hope you're not eating that cake and don't have the tea. You need to be on an empty stomach. वो इस अभी भी ब्रेक हो रही है. I don't understand why. अब ठीक है? अब आवाज आ रही है? Is it too distant? Should I just come closer maybe? अब आ रही है clear आवाज? Please indicate. So फिर क्या हुआ कि maybe I should wear my headphones. It's fine, okay. So please बता दीजिए now, तो मैं headphones पहन लूंगी, फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. So what happened? Thanks Vikram. So what happened then? सुमी ने कहा, वो सर्जन बाहर से लगे कि आपने नहीं खाना. तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी. वैसे भी मैं निराश थी, तो मैं नहीं खाऊंगी. तो रोहित ने कहा कि वो डॉक्टर ने जब कहा कि आपके टेस्ट होने हैं, कल MRI होना, तो रोहित ने गुरुजी के जैसे बोलते थे कि तुसी हमें टेस्ट वेस्ट करांदे जाओ, कुछ नहीं निकलना ना था. सो I looked at Rohit, I looked at doctor, I said don't worry, I understand कि मुझे नहीं खाना. जैसे वो डॉक्टर निकले तो रोहित ने कहा ले लो केक. तो सुमी ने काटा और सीधा मुंह में डाल दिया, पूछा भी नहीं, मुंह में डाल दिया कि हम तो खा ले, क्योंकि कुछ नहीं निकलेगा तेरा. तो मैंने कहा क्या मतलब, 2 हफ्ते से मैं हॉस्पिटल में हूँ, एंड कि 2 हफ्ते हॉस्पिटल में हूँ, हर तीसरे दिन तो मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है. हमेशा यही होता है, यही एक ही रिपोर्ट आती है, स्लज इन द लिवर, पाइल डक्ट इज ब्लॉक्ड एंड स्टोन्स है. तो ये कैसे हो सकता है? ओके ठीक है, थैंक्स राखी. सो वो दोनों बोले चुप करके खा लो. मैंने खा लिया. anyway, चाय प्रसाद भी ले ली, केक प्रसाद भी ले लिया, एगलेस था बाय द वे, तो पूरा प्रसाद था. तो मैंने खाया, और दूसरे दिन मेरा MRI था. MRI में मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप हूँ, एंड जब MRI में गई, मैं एकदम पहले तो नर्वस हो गई, फिर एकदम गुरुजी की खुशबू आई. नाउ आई थिंक मुझे ऐसे ड्रीम्स नहीं आते, खुशबू नहीं आती. मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी लाइफ इतनी बदल गई है. गुरुजी ने जैसे कहा, जब मेरा स्किन कैंसर ठीक किया, तो गुरुजी ने कहा मैं तो तेनू नवी जिंदगी देती है, मैं तेरे स्टार्स बदलते हैं, तो कौन कर सकता है सवाए रब के. सो नेक्स्ट डे वॉज माई MRI. खुशबू आई. सैटरडे मॉर्निंग मेरे डॉक्टर आते हैं कमरे में, कहते हैं आप अपना पैक कर लो, आप डिस्चार्ज होने वाले हो. मैंने कहा डिस्चार्ज? आज तो मेरी सर्जरी है ना. कहते कोई सर्जरी नहीं है, आपका MRI बिल्कुल प्लेन निकला. सो गोइंग बैक टू, जब गुरुजी ने मुझे स्किन कैंसर ठीक किया, तो उन्होंने एक चीज बोली जिससे महसूस हुआ कि गुरुजी नहीं है, ये तो भगवान है. एंड मैं कंफ्यूज ही रहती थी कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे गुरुजी को सब कुछ पता है, मेरे पिछला ये अगला. गुरुजी कहते थे ना, तुसी जब मत्था टेकते हो तो मैं थोड़ा पिछला भी देख लाना,
प्रेजेंट भी देखता हूँ, अगला भी देखता हूँ, और वो फिर हमारे कर्मों पे काम करते हैं. सो क्या हुआ कि जब उन्होंने स्किन कैंसर ठीक किया तो कहते हैं, जिस दिन मुझे ब्लेस किया, कहते तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह निचोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किया, तू बाथरूम की बत्ती ना बंद किया कर बाथरूम जाने तो पहले. सो देन आई जस्ट लुक्ड एट हिम, आई सेड इनको कैसे पता है इतनी पर्सनल चीज कि मैं बाथरूम की बत्ती बंद करती हूँ बाथरूम जाने से पहले, बिकॉज मुझे आईने से डर लगता था. तो गुरुजी ने कहा तू हूं आईने को न डरिया कर, उनको एक एक बात, ही नोज एवरी ग्रेन ऑफ आवर लाइव्स, he knows every grain of our being, he knows whatever thought we are thinking, whatever feeling we are feeling, he is aware of all of our emotion, our thought, word and action. उनको सब कुछ पता है. गुरुजी कहते थे रब ਨੂੰ बेवकूफ बनाने ਦੀ कोशिश ना किया करो, तुसी अपना सिर्फ भोले बन के रहो. भोलिया दा रब हुंदा, चलाकिया कुछ नहीं रखा. सो मैंने जब कहा कि गुरुजी, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एस्टोनिश के आपको कैसे पता है कि मैं बाथरूम की बत्ती, मैंने टेलीपैथिकली बोला, ऐसे नहीं वर्बली. तो गुरुजी ने कहा वर्बली कि क्यों हैरान हो रही है, सस्ते विच रब मिल गया, बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लेंदा है, खा भी लेंदा है, तो पता ही नहीं मैं कौन हाँ. जो मैं चले जाऊंगा ना, फिर याद करोगे जो लाइना लग जानिया ने, जगह जगह मेरी जोत जलनी है. देखी कर की कहानी होनी है, कर विच जोत जलेगी तेरे गुरु दी. सो इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड क्या हुआ फिर कि उन्होंने कहा तो पिछले साल फिर एस्ट्रोलॉजी को गई थी. मैं कहा हाँ जी गई थी गुरुजी. तो कहते फिर दस कौन वड्डा, हूं दस अनीता कौन वड्डा, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर. मैं तेरी जिंदगी बदलती है, तेन नवी जिंदगी देती है. सो दिस इज आवर गुरुजी एंड मच मोर. ही सेड मेरे वास्ते तो कैंसर, डायबिटीज, आसमा ठीक करना नहीं तो मामूली चीज है, तुहानू ठीक करना मुश्किल है. तुसी जो मैं देन आया वो कोई नहीं मंगता. जो मैं देन आया, सी what did he come to give us? He came to give us a lot more than we could quantify and imagine. He came to give us humility, humanity, compassion. He came to give us that wisdom कि यही सब कुछ रह जाना है. जो हम मांगते हैं ना वो यही रह जाना है. जो हम नहीं मांगते, जो असली चीज है वो ही साथ जानी है, पर वो हम मांगते नहीं है. हम यही की हमें इस दुनिया की बहुत अटैचमेंट है. हमें फेम मिल जाए, हमें सक्सेस मिल जाए, हम सिंगर बन जाए, हम आर्टिस्ट बन जाए. मैं खुद ही आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ. और हमेशा से होता है कि हम बहुत ज्यादा अटैच्ड है ये वर्ल्ड से, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते एक दिन तो छड़ना है ना. और क्या जाना है साथ, ना वो फेम जाना है, ना वो सक्सेस जाना है, या ना बैंक बैलेंस जाना है. गुरुजी कहते सब कुछ हथे रह जाना है, सिर्फ नाम की कमाई ना जानी है. तो वो मंग लो, रब को लो, रब मंग लो, असली चीज मंग लो. हूं तो वैसे टाइम आ गया असली चीज मांगने का. गुरुजी ने जैसे कहा कि बारिश आनी है, 3 चीजा दी देखी, बारिश होनी है, कैंसर दी, डिवोर्स दी, डिप्रेशन दी. लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए भी, इस टाइम के लिए भी हमें प्रिपेयर कर दिया था. कैसे प्रिपेयर किया? सत्संग करते गए, पूरा दुनिया में फैला दिया सत्संग. जब गुरुजी जाने लगे कहते तू तेरी सेवा है सत्संग कितना कर और संगत जोड़. मुझे दोनों ही चीजें नहीं आती थी. मैं कहती थी सत्संग क्या होता है, कैसे करते हैं. मुझे याद है पहली बार जब गुरुजी ने मेरा अस्थमा ठीक किया तो मुझे कहते हैं खड़े होके सुना. मैं बड़ी नर्वस हुई, मैं वैसे इंट्रोवर्ट हूँ, इतनी नर्वस हुई, खड़ी हो गई, नीज में एकदम शेक होने लगे और पसीना पसीना हो गई. और मैंने कहा गुरुजी ने ना मुझे आसमा ठीक कर दिया. जय गुरुजी. मैं बैठ गई. गुरुजी हंसने लगे, गुरुजी कहने लै कमली है, तेनू तो सत्संग भी नहीं शेयर करना आंदा. फिर जब 2007 में जब गुरुजी को मिली, एक हफ्ता पहले उनके जाने से पहले, तो गुरुजी ने कहा तेरी सेवा है सत्संग कितना कर और संगत जोड़, जगह जगह जाए सत्संग कितना कर. ही न्यू आई लव ट्रैवलिंग. सो उन्होंने बड़ा अच्छा एंजॉयबल काइंड ऑफ सेवा मुझे दे दी. एंड मैं इतने अच्छे लोगों को मिलती हूँ, बहुत अच्छे लोगों को मिलती हूँ. और मुझे लगता है मेरे पिछले जन्म का कोई इनके साथ
एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है, कनेक्शन है बड़ा डीप। मैं विक्रम को मिली मेलबर्न में, मुझे विक्रम लगता नहीं मेरा पिछले जन्म का कोई भाई है। मैंने श्रुति को मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिली, डिम्पल आंटी को मिली सिडनी में, कितने लोगों को मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोग ब्रिस्बेन में। एंड देन गुरुजी ही कनेक्ट करते हैं, कैसे संगत बढ़ाते हैं, उसका भी एक छोटा सा सत्संग है। सो मैं थी फ्लाइट में, मुझे कौन सी जगह इंडिया में, वो देहरादून की संगत में पायलट आंटी है, तो उन्होंने कहा आप प्लीज आ जाओ यहाँ सत्संग आके शेयर करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ कोई मुझे बुलाता है। तो मैं कहती हाँ मुझे जाना है, मुझे अपनी सेवा करनी है, और सेवा हम नहीं करते, गुरुजी कराते हैं, हम कोई भी नहीं, अगर मैं नहीं करूंगी यहाँ तो कोई और करेगा। तो हम इट्स नॉट लाइक वर इंडिस्पेंसिबल और स्पेशल, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई स्पेशल नहीं, कोई सब इक्वल है। गुरुजी ने तो इक्वलाइजर है, ये सत्संग इक्वलाइजर है। नोबडी इज रिच फॉर, वी आर ऑल वन, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द स्पिरिचुअलिटी, द वननेस ऑफ एवरीथिंग। सो मैं देहरादून जा रही हूँ और थोड़ी सी डिप्सी होके, बिकॉज एयरपोर्ट पहुंची तो रियलाइज नहीं किया जब मैं क्यू में खड़ी हूँ कि फाइनल फ्लाइट वो अनाउंस हो चुकी थी। मैं खड़ी हूँ क्यू में और सोच रही हूँ कि फ्लाइट तो 15 मिनट में है और मेरा इतनी लंबी क्यू है यहाँ, ये नहीं कि आगे जा लो। एक लेडी खड़ी थी साथ, तो मैंने लेडी को ऐसे पूछा, मैं कहा आर यू गोइंग टू देहरादून? शी सेड यस। मैंने कहा फ्लाइट अनाउंस होगी? कहती पता नहीं, पर मैं बड़ी नर्वस हो रही हूँ, 15 मिनट रहते हैं हमारी फ्लाइट को। मैं कहा ओ माय गॉड, देन लेट्स जंप द क्यू एंड आस्क द चेक इन काउंटर। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज कि हमने पूछा, पता किया कि वो कहते वो तो फाइनल को हो चुकी है, आधा घंटा हो गया, सो जस्ट रन टू योर फ्लाइट। सो हम दोनों भागे, और जैसे भागे मैं वेट करती रही उस लेडी की सिक्योरिटी में। और नॉर्मली मैं वेट क्यों करूं, मैं जानती भी नहीं इस लेडी को, पैसेंजर को, फेलो पैसेंजर को, पर मैं वेट करती रही फॉर सम रीजन। वेट किया एंड देन वी बोथ मेड श्योर दैट वी सैट टुगेदर ऑन द फ्लाइट। दोनों देहरादून जा रहे थे, दोनों स्ट्रेंजर है इस पॉइंट में, एंड कहां से गुरुजी स्ट्रेंजर को फैमिली बना देते हैं। सो दैट्स द ट्रांजिशन। तो क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, फ्लाइट में एज यूजुअल जैसे हम सब ऐसे हो गए, हम गुरुजी की संगत सब ऐसे हैं। मैंने गुरुजी की बातें करनी शुरू कर दी, अपना सत्संग सुनाना शुरू कर दिया स्ट्रेंजर को। वो हंसने लगे, वो कहती अच्छा तो देहरादून क्यों जा रही है? मैंने कहा सत्संग करने। तो मैंने कहा तू भी आ जाना वहां। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट इज वी गॉट एक्वेंटेड। अ ईयर लेटर शी कॉल्ड मी, शी सेड मैं भोपाल में हूँ, आपने आना है, ये प्रिया नागरत है, and she says you have to come to you have to come to Bhopal and you have to come and share your satsang. So how beautiful is Guruji. Bhopal, I didn't even know, that it was not even in my radar, never been to Bhopal, but through her, through Priya, I met such beautiful sangat there. I met this beautiful sangat, तो उनकी ऐसी है वहाँ कि they just treated me like I was someone special, which I'm not, but I got so much love. Guruji showered me with his love through the sangat, who are today my family. They are completely my family. So and we are very close. And वहाँ सपना है, सपना सिंह, her husband, her daughter, lovely daughter, Ashwarya. So, and Priya is of course there. So it's such a beautiful way of Guruji connecting the dots. It's him. It's all him. He connects every dot. I remember moving into my new home because I've always been shuttling between Manchester, my birthplace, and Delhi. So शटल गुरुजी कराते थे, हमेशा भेजते रहते थे, तू जा उत्थे जा, फलाने जा, डबलिन जा, उत्थे सत्संग कर, मैनचेस्टर जा, मारी सेवा कर, उत्थे जाके सत्संग शुरू कर, न्यू कैसल, लिवरपूल, लंदन में पहले ही हो रहे थे। सो ये गुरुजी ने एक रूट बना दिया, हमारे सबके लाइफ का एक रूट बना देते हैं गुरुजी, हमारे आई थिंक टैलेंट्स के हिसाब से, हमारी एबिलिटीज के हिसाब से। अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो वो बोल देंगे कि जा तू लंगर बना। सो इट्स ही नोज व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर एंड ही जस्ट मेक्स यू प्रोग्रेस wherever your strength lies. So energy goes where inspiration flows.
So then, coming back to, I don't remember what I was saying now. So yeah, हाँ, जब मैं वापस दिल्ली आई, तो मुझे शिफ्ट करना था घर. तो मैं वो संध्या शिफ्ट कर रही थी और मैं बहुत नर्वस थी कि मेरी बिल्डिंग में पता नहीं संगत होगी, वसंत विहार में संगत होगी, तो मैं कितनी लोनली हो जाऊंगी. क्योंकि मैं जहाँ पहले थी पंचशील में, वहाँ बहुत सत्संग होने लगे थे और मेरे घर भी हर ट्यूसडे गुरुजी ने कराने शुरू कर दिए. और मेरा एक ही मेन्यू होता था, चना एंड कुलचा. इट वाज जस्ट अ स्टैंडर्ड थिंग. And it was just very intimate, 30, 40, 50 people, and बड़ा अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, सत्संग होता था. मतलब कोई मेरी फैंसी डेकोरेशन नहीं होती थी, कोई मेरा फैंसी लंगर नहीं होता था. It was just Guruji, us and the Sangat. It was nothing elaborate. It was simplicity. It was just simplicity and true spirituality and true connect from the heart. And that was it. And that's the beauty, and that's what he came to teach us, simplicity and spirituality. So हमारे होता था, तो मैं बहुत खुश रहती थी कि सत्संग हो रहा है, something to look forward to every week. मैंने कहा वसंत में में मेरा क्या होगा, And देखते देखते ऊपर नीचे गुरुजी ने सबको कनेक्ट कर दिया. नीचे वर्षा, ऊपर संगीता. And of course, as we all know, I'm sure you're aware, but Vasant Vihar is full of sangat, which is so beautiful. So ये भी गुरु परिवार, जहाँ जाते हो, जहाँ आप कदम लेते हो, आपको परिवार मिलना ही मिलना है. Same with Dubai. मेरे यहाँ संजय सानिया है, which and we are very deeply connected. Sanjay is my guru brother. From past life, he's a very, very devoted and dedicated संगत of Guruji. और जो असली चीज होती है वो वैसे दिखती है, दूर से दिख जाती है कि बहुत दिल से जो जुड़ी हुई है. और यही है हमारा एक कि लाइक एक दिन एक लेडी आई और मत्था टेकी, और मत्था टेकी तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी मजाकी बहुत है थे, हाउ वी ऑल नो हिज ह्यूमर, कि नोएडा को नो आइडिया बोलते थे, ग्रेटर क्लास को आ गई है गटर क्लास. तो सो ही हैज हिज ओन, ही वाज वेरी विटी, ही इज वेरी विटी. तो कहते हैं मत्था टेका लेडी ने, तो कहते 2 मिनट ह्यूमिलिटी दिखा रही है, देखे पुणे से अपना लड़के आई है. तो कहते किसनो बेवकूफ बना रहे हो, अपने कर्म सुधारो. एंड कर्मा इज ऑन 3 levels as we know. What we think, what we say and what we do. So thoughts को भी ना जजमेंटल नहीं बनाओ. थॉट्स अगर कोई जजमेंटल माइंड आए भी, कुछ भी, तो इरेज इट, डिलीट, उसको बढ़ने ना दो. डोंट लेट इट मैग्नीफाई, डोंट लेट इट टेक ओवर योर थॉट प्रोसेस. गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे, जब मैं कहती हूँ कि आज के दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ये प्रिपेयर कर रहे थे कि आप पॉजिटिव रहो. हमारे सत्संग जगह जगह शुरू कर दिए, तो अपने आप प्लेटफॉर्म बना दिया कि तुम सत्संग करो. ऑफकोर्स हम सत्संग करते हैं तो हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संगत आए. और 2 तरह की संगत होती है. संगत जो असली आती है गुरुजी, और भीड़. और एज ह्यूमन स्पीशीज, like we are human beings, human mammals, human social beings को होता है कि भीड़ बहुत हो जाए, जितने लोग आएंगे उतनी संगत अच्छी, सत्संग अच्छा होगा. But I just believe that it's quality over quantity. It's not about the numbers. It's really about your connect. It doesn't matter how many you have. आज मैं अकेली करती हूँ, मेरे बच्चे थोड़े बिजी होते हैं, दोनों beautiful babies I have grown up, but they grown up, they have their work. So I don't depend on them, don't impose on them. मैं उनके लिए बस प्रे करती हूँ, गुरुजी उनको भी मेहर करते रहो. You cannot impose on people. You can't impose on your own kids and kin, your own children. पर उनके लिए आप प्रे तो कर सकते हो ना. तो I sit alone in this room and I love it. मैं जो चलाती हूँ, छोटा सा स्वरूप है मेरे पास, पर दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखो. जितना आप गुरुजी को कनेक्ट करो थ्रू शब्द, गुरुजी ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया ना. शब्द गुरबानी सुनो, जिसका वाक्य है वो और भी अच्छा है. रिंकू जी के बड़े अच्छे आ रहे हैं, कईयों के आ रहे हैं, क्योंकि उनमें हमें मैसेज मिलता है, हमारा लाइफ मैसेज मिलते हैं. मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैंने वैसे नहीं सीखा, इतने साल जाते हुए. इसलिए कहते हैं ना गुरुजी कोई नवा नहीं, कोई पुराना नहीं. कौन सी क्लास में हो वो गुरुजी जानते हैं. तो वो भी उनके हाथ में है, वो किताब उनके हाथ में, फाइल उनके हाथ में, कौन किस क्लास में, कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है. फेल तो हम कोई नहीं होते, गुरुजी के पास आ गए तो हम सबको ताड़ देते हैं गुरुजी. पर हमें सिर्फ गुरुजी को मानना ही नहीं है, गुरुजी की भी माननी है. गुरुजी को मानो, गुरुजी की भी मानो. जो गुरुजी ने कहा
कि आप सत्संग सुनो, सत्संग करो, शब्द सुनो, शब्द को अमल करो, जस्ट सुनो ही नहीं। ये नहीं कि मैंने बैकग्राउंड लगा दिया मैं काम कर रही हूँ. नो, focus on it with your eyes closed. It's so children, it's so important. So it's बच्चे तो हमारे थ्रू ही ब्लेस होंगे ना, तो बच्चों को कभी इम्पोज एंड फोर्स ना करो कि तुसी आओ, उल्टा गुरुजी को सरेंडर कर दो कि बस आप जोड़ दो उनको ऐसे जोड़ो कि उनको रस आए, अपने आप रस ऐसे आए कि वो कहे कि मम्मी सत्संग नहीं करना आज, तो वो कहे कि मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ या हलवा प्रसाद बनाती हूँ, तो मजा ही अलग है, वो रस अलग ही है। जब आपके बच्चे कहते हैं, आप तो एज अ मदर कहोगे, सबको ही कहोगे आ जाओ बैठ जाते हैं, पर फोर्स नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी फोर्स्ड, you can just send your love, and whatever issues you have, which I have learned, which I have, I don't discuss it with even people. मैं गुरुजी से डिस्कस कर लेती हूँ, गुरुजी उसने ऐसे कहा, गुरुजी उसने हर्ट किया, गुरुजी उसने, तो आप ही देख लो, आपने ही जस्टिफाई करना है या आपने ही लेवल आउट करना है, और मेरी गलती मुझे दिखा दी है, मिरर दिखा दो, बस मिरर दिखा दो और मुझे सुधार दो, जस्ट मेक मी वर्दी of your love, of your grace, and let me be eternally yours. मुझे तो असली चीज दे ही दो ना गुरुजी, अब बहुत हो गया इधर उधर भटकना, जो असली चीज है वो बड़ा अच्छा सत्संग है जिसमें गुरुजी ने बोला था ये कि जब मेरा स्किन ठीक हो गई थी तो मैं जाती थी छोटे मंदिर भागते भागते, लालच था गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए, तो जल्दी चले जाती थी थोड़ा। गुरुजी कहते 7 बजे आया कर जो संगत आंदी है, मैं 5 बजे 5:30 बजे लालच में। तो गुरुजी ने एक बार बुलाया अंदर, तो वो लेडी बैठी थी वहां, बहुत सुंदर लेडी पाकिस्तान से, उसका ग्लो था फेस में, बहुत खूबसूरत थी। तो मैं वहां बैठ के पीछे होके, गुरुजी बैठे थे हमने गद्दी मतलब अंदर कमरे में, और वो लेडी नीचे पांव दबा रही थी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग जो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, सो लॉट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड इट ऑलरेडी। पर गुरुजी कहते सी ना दोबारा भी सुनोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ नवा ही मैसेज कोई नजर आएगा या फिर दोबारा ही ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेसिंग मिलेगी, तो कुछ पता नहीं होता। तो ये तो वैसे भी हर लेडीज चाहती कि मेरा फेस पे ग्लो है। तो वो गुरुजी बैठे हैं, मैं पीछे होके बैठ के मैं देख रही हूँ ये लेडी को, गुरुजी पे ध्यान ही नहीं है, बस गुरुजी पे मत्था टेका और वो लेडी के तरफ मैं देखती गई हूँ, सोचती गई हाय मैं भी काश इतनी सुंदर होती, मेरे पास भी ऐसा ग्लो होता। एंड क्या हुआ कि दोपहर में भी, उस दोपहर में आई हैड अ फ्रेंड ओवर एंड शी हैड टी विद मी एंड शी पुट द जूठे इन फ्रंट ऑफ गुरुजी स्वरूप। तो मैं बड़ी ऑफेंडेड हो गई, मैंने कहा गुरुजी के सामने ना जूठा नहीं रखते। तो कहती ओके यू आर ओवर रिएक्टिंग बट इट्स फाइन। उन दिनों में, ये बहुत पुरानी बात सुना रही हूँ, तो उन दिनों में तो वैसे भी हार्डली यानी संगत होती थी, हार्डली पीपल वर कनेक्टेड टू गुरुजी, तो पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड माई सेंटिमेंट। तो मैंने कहा गुरुजी के सामने जूठा नहीं रखते। वो शाम चले गई, जब गई तो वो लेडी बैठी है बहुत सुंदर, अदर से इतनी खूबसूरत पाकिस्तान से, और गुरुजी के पांव दबा रही है। तो गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पता नहीं की सोची जा रही है, ऑब्वियसली न्यू मैं क्या सोच रही हूँ। तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, पर मैं भी 2 मिनट देखा गुरुजी को, फिर वो लेडी की तरफ देखने लग गई कि हाय कितनी सुंदर है, ग्लो है एकदम। गुरुजी कहते हैं नीता चाय प्रसाद मंगवावा, तो मैंने गुरुजी की तरफ नहीं, मैंने वो लेडी की तरफ कहते हाँ जी गुरुजी। तो अभी भी फोकस वही था। तो गुरुजी अभी और स्माइल कर रहे हैं कि ये तो मेरी माय डिवोटी इज मैड। सो वो चाय प्रसाद आई एंड हमने पी, एंड जैसे पी वो लेडी ने पी, और अभी भी गुरुजी के पांव दबा रही थी, चरण दबा रही थी, तो वो पी के गुरुजी के चरणों के साथ ही रख दिया जूठा, बिल्कुल साथ। तो जो मेरी थॉट्स थी इन द आफ्टरनून के, मेरी फ्रेंड कितनी शेमलेस है, उसने गुरुजी का सामने ही वो रख दिया जूठा, तो सेम मेरे थॉट्स एकदम मैं रिएक्ट करी, एंड मैंने कहा कितनी शेमलेस लेडी है, फ्रॉम व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन टू व्हाट अ शेमलेस वुमन, गुरुजी के सामने इसने जूठा रख दिया। तो मैंने अपनी आंख बंद कर लिया, मैंने कहा मैंने नहीं इसकी तरफ देखना, मुझे क्या बहुत सुंदर हो बहुत ग्लो, मैंने क्या करना है, मैंने अपनी आंख बंद कर ली। गुरुजी और भी स्माइल करने लगे, फिर थोड़ा सा गिगल करते हैं, और गुरुजी की हंसी बहुत प्यारी हंसी है। तो गुरुजी हंसे कहते नहीं तेनू समझा, गुरुआं दे सामने झूठा नहीं रखेगा, फिर तेरी ग्लो दे बारे गल करना, तेनू ग्लो चाहिए है। आई वॉज सो एम्बैरेस्ड एज यू कैन इमेजिन।
I looked at him, I said, oh my God, he hears every thought of ours. So be careful what you think. So मैंने कहा गुरुजी पता नहीं, I kept stumbling and I kept fumbling and I said, गुरुजी मुझे नहीं पता. He said, ग्लो चाहिए ना, ते रब को लो रब मंगला, ग्लो ही ग्लो है, असली चीज मंगला नहीं था. फिर देखी नजारे, और वो नजारे आज समझ आ रही है कि जब हम सचमुच वो मांगते हैं ना, तो लाइक वी से व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर ऑल आवर लाइव्स. आप बताओ, आप क्या सर्च कर रहे हो? साइयों में क्या सर्च करते हो? कि मैं हैप्पीनेस मुझे मिले. सब सर्च करते हैं. ये ह्यूमन डिजायर है, बेसिक एलिमेंटल फंडामेंटल ह्यूमन डिजायर, हैप्पीनेस. दैट इज द परस्यूट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन हार्ट. लेकिन हम जब गुरुजी का नाम ले लेते हैं ना, और गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वो हैप्पीनेस अंदर से हार्ट में फील होती है. वो हैप्पीनेस अनकंडीशनल हो जाती है. इट इज नॉट कंडीशनल टू हाउ मेनी थिंग्स आर बॉट ऑन ऑनलाइन टुडे, और हाउ मच पेंटिंग I've done today, और हाउ मच राइटिंग I've done today, और हाउ मच वाह मिल रही है मेरी राइटिंग के लिए, मेरे कुछ भी. बिकॉज आई एम नोबडी, मैं तो लिखती भी नहीं हूँ, गुरुजी लिखवाते हैं, सब कुछ उन्हीं का है. तो it's, you just realize that happiness doesn't need anything materially attached to it. It only needs God's name, divinity that permeates every cell, every fiber. कहते हैं रोम रोम में बस जाते हैं गुरुजी. श्वासादि माला ना सिमरा तेरा नाम. अगर हम लिटरली नहीं कर रहे हैं ना, तो सबकॉन्शियसली कर रहे हैं. हम सभी कर रहे हैं, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, पर सबकॉन्शियसली गुरुजी हमेशा रहते हैं. मैं खाना, दिस इज अ जोक बाय द वे, बिकॉज मैं तो बहुत हार्डली किचन में घुसती हूँ. मैं नहीं बना सकती टीटू अंकल की तरह वो सरसों का साग पंजाब का आता था, मैं कभी नहीं भूलती. तो लेकिन आज मुझे गुरुजी ने मौका दिया है कि तू मदर बन, असली मदर. अपने बच्चों का खाना अपने हाथों बना और खिला. और मैं रोज बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि निष्का ये अच्छा बना है, सोनाक्षी ये अच्छा बना है, और मैं यही पूछती रहती हूँ, खाना खिलाती रहती हूँ दोनों को. मैं किचन में लगी रहती हूँ और उनको खाना बनाती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज मुझे मौका दोबारा गुरुजी ने दिया है मदर बनने का, टू पैम्पर माई चिल्ड्रन विद माई फूड, विद माई कुकिंग. अच्छी हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर बच्चे मुझे खुश कर देते हैं कि मम्मी बहुत अच्छा बना है, मम्मा यू आर बेस्ट कुक. मैं हूं नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, हूं नहीं, लेकिन मेरे बच्चे तारीफ करते तो मुझे लगता है मुझे जन्नत मिल गई, मुझे हेवन मिल गया यही एक छोटे से कमरे में. तो आप रियलाइज करते हो. अच्छा, मैंने समोसे भी बनाए, बाय द वे मैंने बेक्ड समोसे खुद बनाए. अनुष्का बोली मम्मा समोसे मंगवाए बाहर से. मैंने कहा नहीं, घर में बनाते हैं. और मतलब दे डोंट लाइक गोइंग इन द किचन मच. सोनाक्षी स्टिल डज. अनुष्का तो अपना योगा सिखाती है, तो कहती मम्मी आप चले जाओ किचन में, आप बना लो. मैंने डर डर के बनाया, मैंने शब्द चलाए, मैंने कहा गुरुजी मेरी लाज रखना, बेस्ट समोसे बने. आई एम नॉट लाइंग, उन्होंने ही बनाए थे, बहुत अच्छे बेक्ड समोसे बन गए. सो जो आप मांगो वो आपको मिलता है, लेकिन सोच के मांगो. बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू से मन्नो मंगो नहीं, क्योंकि हमें मांगना आता नहीं एक्चुअली. पर ऑफकोर्स ये छोटी छोटी चीजें कि बच्चे हमारे हमेशा हमें प्यार करें, इज्जत करें, ये बहुत बड़ी चीज है. क्योंकि गुरुजी कहते थे, क्योंकि ब्लेसिंग तो उनको ही मिलनी है, हमारी ब्लेसिंग्स मिलनी है, और हमारे से पहले भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर बच्चे हमें प्यार करेंगे और हम अपने बच्चों को प्यार करेंगे. क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो वैसे ही रब कुल्लू दूर हो जाता है. और वो इस जन्म में मुझे गुरुजी ने मौका दिया. मैं पता नहीं कितने साल की थी, 22 साल की थी जब मैं इंडिया शिफ्ट हो गई मैनचेस्टर से. और मेरी मम्मी जब बीमार हुई 2010 में, जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया, मैनचेस्टर में थी अकेली, मतलब अकेली रहती थी. तो गुरुजी ने जाने से पहले बोला कि तू जा वापस मैनचेस्टर, तो सत्संग शुरू करे और माँ की सेवा कर. मैं दोनों ही फॉरेन थे, टू माई माइंड बोथ फॉरेन. मैंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हैं, सत्संग शुरू कर. सत्संग क्या होता है और माँ की सेवा क्यों करूं, मेरे फादर है ना वहां पे. पर देखो गुरुजी को टाइमिंग पता होता है, तभी कहते हैं आप गुरुजी में मानते हैं तो गुरुजी की टाइमिंग में भी मानो, आप सरेंडर कर जाओ. मैंने एक दिन बोला गुरुजी को लेडी में ना बड़ा फेथ है. कहती कमली फेथ तो बड़ी छोटी चीज होती है, सरेंडर कर जाओ, फिर देखो रस ए वाला रस जो है ना सब तो बड़ा रस है, रब दा रस. बाकी तो रस हर चीज है, दुनियादारी दुनिया गल्ला दी रस,
गैमलिंग ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਵੂਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ असली रस है, बहुत घट लोग मांगते हैं। और वो रस तो सचमुच मिलता है ना सत्संग करने से, सुनने से। आप क्यों बैठे हो, सुन रहे हो, क्योंकि आपको रस आ रहा है, और वो रस जो है ना वही हमें प्योरीफाई कर रहा है। जो हम वेसल लेके आते हैं ना अपनी एम्प्टी वेसल गुरु जी के पास, वो हमारी प्योरीफाई होती है। हम सत्संग सुनाने से हमारी वाणी जो हमारी बोली है वो प्योरीफाई होती है। आपके सुनने से आपका कान प्योरीफाई हो रहा है, हार्ट प्योरीफाई हो रहा है, माइंड प्योरीफाई हो रहा है। तो ये तरीका है गुरु जी का प्योरिफिकेशन का, हमें ब्लेस करने का। और ब्लेसिंग्स बहुत प्रोफाउंड होती है। ये ब्लेसिंग्स हम जो देखते हैं ना वो उससे बहुत डीप है। गुरु जी जब कहते हैं मैं तुम्हें तारन आया, तो तारे हमें, ताकि हमारा अगला जन्म हम सिर्फ रब का नाम लें, हम दुनियादारी में पड़े ना। तो इतना ज्यादा, इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है हमारे शब्दों में, हमारे वाक्या में, कि हमारी यही सबसे बड़ी पढ़ाई है, लिखाई है। वो नहीं है जो हमने स्कूल में सीखा। स्कूल की क्वालिफिकेशंस, लाइक गुरुजी सेड, इट्स इररेलेवेंट व्हेन यू कम इन द realm ऑफ फेथ। जब आप मत्था टेकते हो और मेरे दरबार में आते हो तो सब कुछ छड़ के आया करो बाहर, आपकी प्री कंसीव नोशंस, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशंस। व्हेन योर लॉजिक एंड्स, दैट्स व्हेन ट्रू फेथ बिगिंस। So always remember, in the realm of faith, your logic has no room. Yet everything is so rational. जितना हम गुरु का नाम लेंगे उतने हमें खुशी मिलेगी। So it's simple mathematics. And according to the divine mathematician, हम जितना अपने आप को हम गुरु जी को देंगे उतना हमें वापस कई गुना गुरु जी हमें प्यार करते हैं। For that one step we take towards him, he takes 1,000 steps towards us. So it's a beautiful journey. It's a journey which cannot be articulated in words. उन्होंने क्या क्या ठीक किया मुझे नहीं पता। फिजिकली मुझे पता है, मेरा कैंसर ठीक किया, मेरी होल इन द हार्ट था, वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अस्थमा ठीक किया जो लाइफ थ्रेटनिंग था। मैं स्टेरॉइड इंजेक्शन टैबलेट्स भी थी। मेरा ऑटो इम्यून डिजीज ठीक किया, विच इज इम्पॉसिबल। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स की, ये बहुत अच्छा सत्संग है, क्विकली सुनाती हूँ। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई बीन ऑन, आई लूज काउंट। कोई इंडिकेशन दे दे कि ये मैं शेयर कर सकती हूँ, नहीं तो मैं जा भी सकती हूँ, बिकॉज काफी देर हो गई है। आई थिंक ये गुरुजी ने इंडिकेशन बहुत बड़ा दिया, क्योंकि लोग कहते हो आप तो मिले हुए हो, आप कितने ब्लेस्ड हो, तो यू नो आप मिले हुए हो, लेकिन हम कैसे कनेक्ट करें। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ। यस जी, थैंक यू। सो हम कैसे कनेक्ट करें, तो द पॉइंट इज भगवान तो मैंने तो कृष्णा को भी नहीं देखा, मैंने तो शिरडी साईं बाबा को नहीं देखा, लेकिन जब मैं जुड़ती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो भगवान को देखने की जरूरत है, महसूस करने। गुरु जी एक एहसास है, गुरु जी एक एनर्जी है, वो एनर्जी से कनेक्ट करो। जैसे आप एनर्जी को कनेक्ट करते हो वैसे आपकी पूरा ओरा बदल जाता है, आपके सोचने का तरीका, आपने देखने का तरीका, आपकी परसेप्शंस, आपके ओपिनियंस, जजमेंट्स, सब कुछ बदल जाता है। वी बिकम सॉफ्टर ह्यूमन बींग्स, एंड ओनली ही डज दैट, वी कांट डू इट, ही डज इट। मैं उनकी मेहनत मेरी, रहमत तेरी। मेहनत मैं थोड़ी सी करूंगी कि मैं बैठ के शब्द चलाऊंगी, बच्चों के लिए कुकिंग नहीं करूंगी, मैं बैठ जाऊंगी। मेहनत थोड़ी मेरी है, पर रहमत उनकी है। ही नोज कितना देना है किसको। कहते थे 60 वाट से बल्ब नू मैं अगर 100 वाट की मैं पा दांगा एनर्जी तो बल्ब फट जाएगा ना। सो जितनी हमारी वेसल है उतना ही भरेंगे ना। वैसे तो ही फिल्स आवर कप टिल इट रन्स ओवर, राइट। ही फिल्स आवर कप, वी गेट मोर देन व्हाट वी डिजर्व। आई नो आई गॉट मोर देन व्हाट आई डिजर्व। मुझे नहीं पता मेरे पिछले जन्मों के क्या कर्म है, बट आई जस्ट नो कि टुडे ही इज गिवन मी मच मोर देन व्हाट आई probably deserve. That's his grace. But आपको autoimmune disease का सुनाती हूँ. It's a very powerful satsang. So what happened? I was diagnosed in 2016, and it continued. And I live in Delhi, between Delhi and Manchester. Somebody's asking me, but I'm in Dubai right now. वो भी satsang है, as I said. मैं यहाँ हूँ अपने बच्चों के साथ हूँ, दोनों बच्चों के साथ. So it's beautiful. ये गुरुजी ने प्लान किया था कि मैं अकेले दिल्ली में एक कमरे में होती तो मैं I don't think I would have survived. But यहाँ तो it's beautiful because I have my children with me and I can play mother again. So
जब मुझे डायग्नोज हुआ ऑटोइम्यून डिजीज, तो मैं बड़े मंदिर भाग गई एंड मैं कोने में बैठी और मैंने रोना शुरू कर दिया। एंड मैंने कहा गुरुजी पता नहीं आप सुन रहे हो या नहीं, बट आई एम नॉट रेडी टू गो बिकॉज डॉक्टर्स ने 50-50 चांस दे दिया। कहते 50-50 चांस ऑफ सर्वाइवल है, आप रहोगे या नहीं हमें नहीं पता, पर हमें आपको हॉस्पिटलाइज करना है एंड कीमो स्टार्ट करनी है। As usual, as is the case for every one of us, मैं चले गई बड़े मंदिर एंड मैंने आंख बंद की और रोती गई और मैंने कहा गुरुजी मेरे तो बच्चों की शादियां भी नहीं हुई अभी, मेरी जिम्मेवारियां नहीं खत्म हुई, तो आई एम नॉट रेडी टू गो एंड आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, बिकॉज इतना डेटाबेस बढ़ गया आपका, मैं हूं भी उसमें या नहीं। तो कह के लंगर करके घर चले गई। 2 हफ्ते बाद जब हमने रिपोर्ट्स कंपेयर की तो डॉक्टर ने कहा 2 हफ्ते में आपने क्या किया है। मुझे पता था कि मैं लंगर पे लंगर पे लंगर, सत्संग पे सत्संग, ये हमारी दवाई है, लंगर भी, सत्संग भी, आप भी, संगत भी, सब हम एक दूसरे की दवाई है, मेडिसिन है। वी आर ऑल वॉकिंग ईच अदर होम, वी आर देयर फॉर ईच अदर एंड वी आर इनकम्प्लीट विदाउट द अदर, वी आर ऑल इनकम्प्लीट। एक संगत नहीं होती, संगत बनती है संगत के साथ। संगत भी क्या होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमारी संगत जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे हम होते जाएंगे। तो संगत भी बहुत बड़ी चीज है, तो संगत के थ्रू ही हमें इतना प्यार मिलता है और ग्रेस गुरु जी की आती है हमारे पास। सो एनीवे डॉक्टर्स कंपेयर द नोट्स एंड दे वर बैफल्ड एज यूजुअल एंड दे सेड आपको ऑटोइम्यून डिजीज था 2 हफ्ते पहले, अब आपको एक रिपोर्ट दिखा रही है कि सिर्फ लो इम्यूनिटी है। तो आपने क्या किया 2 हफ्ते में? तो मैंने सिर्फ कहा मैंने तो गुरुजी का लंगर किया और गुरुजी का पाठ किया, तो बस यही है। एंड देन आई वेंट टू बड़ा मंदिर टू थैंक गुरुजी एंड एक संगत आई एंड ही नज्ड मी फ्रॉम द बैक, नीतांजी आप जिंदा हो? मैं कहा हाँ जी लगता तो है, बोलिए। तो ही सेड आप सपने में आए थे, गुरुजी खड़े थे, आप जा चुके थे और गुरुजी ने कहा कि एनू फिर बचाना पिया मैनू क्योंकि आली अदे जिम्मेवारियां नहीं खत्म हुई है। So I looked at the uncle and I said, oh my God, really? This is exactly my dialogue with him when I sat in the corner and cried कि गुरुजी अभी मुझे ना जाने दीजिए क्योंकि अभी मेरी जिम्मेवारियां नहीं खत्म हुई है। वो भी शायद हो जाएंगी, बच्चे आजकल सुनते नहीं है, शादियां करना नहीं चाहते हैं, पर अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगी। Like my mom said कि जिनने खाया वो भी पछताया लड्डू, जिन्हें नहीं खाया वो भी पछताया। सो गॉड नोज क्या सही है क्या गलत है, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बच्चों को पता है, गुरुजी को पता है। वो भी सरेंडर करना पड़ेगा कि गुरुजी जब आपको लगे, जिसके साथ आपको लगे उसी के साथ करना, नहीं तो अभी नहीं करना, बिकॉज टाइमिंग उनके पास है सबकी। वो कैलेंडर अपने पास ही रखते हैं, वो जस्ट शेयर नहीं करते डेट्स। गुरुजी इस मामले में बहुत ही इज वेरी सीक्रेटिव, ही डजंट शेयर एनी डेट्स विद अस। हमें क्या पता था कि हमें वी विल बी इन अंडर लॉकडाउन, काफी लॉक्स खोल भी दिए हमारे, काफी अनलॉक कर दिए हमें, कितने द्वार हमारे अनलॉक कर दिए। पर ये लॉकडाउन में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितने आपके लॉक्स हैं ना अंदर, फेयर के लॉक, इनसिक्योरिटी के लॉक, खोलते जाइए और सारे लॉक्स फेंक दीजिए और बी फ्री स्पिरिटेड। बिकॉज गुरुजी ने तो किसी चीज में हमें वहम डाला ही नहीं, किसी चीज में हमने नहीं कहा कि ए नहीं करना, तुसी ए नहीं खाना, वो नहीं करना, ए नहीं पाना। इनफैक्ट इससे अपना ध्यान रखो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। कितना प्रिपेयर किया था उन्होंने आज की डेट के लिए। मुझे कहते हैं कि तू वॉक कितना कर 1 घंटा, मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं भागती थी, कोई मुझे सत्संग पे बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा है, मैं भागती रहती थी, आई वाज ऑन द ट्रेडमिल। और आज मैं एक्चुअली आई काउंट माई स्टेप्स, आई डू माई 10,000 एवरी डे। जैसे कहते थे कट खाया कर, ज्यादा ना खाया कर, there's a reason why, तो वो भी मैं कम करना शुरू कर दिया। सो कंट्रोल्ड हो गया, डिसिप्लिन हो गया। 1 घंटा मैंने याद कितना कर, मैं सोचती मैं याद तो करती हूँ, चलते फिरते याद तो कर रही हूँ, पर नो, अगर खाना खाना है तो किचन में जाके बनाना पड़ेगा ना। तो सेम वे कि हमें अगर पाठ करना है गुरुजी को तो सच में बैठ के थोड़ी देर याद करो, टाइम दो, क्वालिटी टाइम इसको बोलते हैं। अगर हम बैठ के करेंगे ना तो फिर हम क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। और गुरुजी को मल्टीटास्किंग में क्यों लेके आए हम? याद करो, थैंक यू करते रहो, चलते फिरते थैंक यू करो। मैं खाना भी बनाती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, तो मैं कहती थैंक यू गुरुजी, हर चीज का। और इस चीज का भी थैंक यू, लॉकडाउन का भी थैंक यू, सोशल डिस्टेंसिंग का भी थैंक यू, क्योंकि अब हम डिस्टेंस करके एक दूसरे से हम अपने नजदीक आ रहे हैं, अपने रब के नजदीक आ रहे हैं।
हमें कभी ये मौका ना मिलता। आप ये दिन याद रखोगे जब ये दिन खत्म हो जाएंगे और न्यू चेंजेस आएंगे एंड न्यू नॉर्मल आएगा, बिकॉज द नॉर्मल इज गोइंग टू बी रीडिफाइंड। द न्यू नॉर्मल इज इमर्जिंग नाउ, एज वी ऑल नो। सो जब वो न्यू नॉर्मल आएगा ना, आप ये दिन को याद रखोगे कि हाय कितना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, कितना अपने आप से मेरे नए टैलेंट्स निकलते रहे। मुझे याद है मैं हॉस्पिटल में थी, रोहित पता नहीं सुन रहा या नहीं, रोहित कपूर, पर मैं बहुत लॉस थी। 2012 की बात है जब मेरा सर्जरी हुई। मैं बैठी हुई हॉस्पिटल में। अब तक तो मैं थोड़े रिलैक्स्ड हो गई कि मतलब चलो संगत आई है मुझे मिलने, केक भी खिला दिया सुमी ने। और मैं बैठी हुई तो मैंने कहा रोहित मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भगवान ने टैलेंट्स इतने दे दिए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा हूँ टैलेंट्स पर करूँ क्या। तो रोहित ने कितनी वाइजली मुझे आंसर दिया कि अनीता इतना ज्यादा टैलेंट क्यों रब देता है, ताकि अब रब के लिए टैलेंट यूज करो। वॉट वी आर इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, वॉट वी मेक आवरसेल्व्स इज आवर गिफ्ट टू गॉड। सो आप अपना ड्राइंग करते हो, गुरुजी के स्केचेस बनाओ। आपको लिखना आता है, आप गुरुजी की किताबें लिखो। आपको बोलना आता है, आप सत्संग करो। बस संगत के थ्रू मैसेज मिल गया, लेकिन फिर भी रिआइट्रेट करती हूँ, अपने डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और कहीं ना कहीं जाके संगत के थ्रू ही मैसेज मिल जाते हैं। कई बार शब्द के थ्रू, कई बार संगत के थ्रू, कई बार फेसबुक में खोलते हैं तो हमें मिल जाता है कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन। तो गुरुजी आपसे बात करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपके कान होने चाहिए, दिल होना चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए। तो आप सुनिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं, साइलेंस में आप सुनिए। और बाकी ज्यादा न्यूज मत देखो, नेगेटिविटी कहते थी ना सुनो। जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मैं तो बिल्कुल अड़ गई थी, टीवी ही देखती रहती थी कि अब क्या मोदी जी करेंगे, अब क्या डिमोनेटाइजेशन होगा, क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, क्या होगा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, मैं नेगेटिव हो गई थी। और एकदम संगत का फोन आता है और कहती है अनीता जी आपको याद है ना गुरुजी कहते से ज्यादा नेगेटिविटी नहीं सुनी थी और न्यूज नहीं सुने था ज्यादा। मैंने कहा हाँ। तो कहते आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो 3 दिन से सिर्फ न्यूज ही देख रही हूँ। इस बार हेडलाइंस पढ़ी और खत्म। ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करना, ऑब्जर्व करना है। जितना अब्जॉर्ब करेंगे उतनी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी वाइब्रेशन आपकी लो होती जाएंगी। हमें भगवान का नाम लेने के लिए भी तो सर्टन वाइब्रेशन होनी चाहिए ना। क्यों हम इतना हाई फील करते हैं सत्संग जाने से, सत्संग सुनने से, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन यहाँ होती है। और मैं न्यूज लगाऊंगी, मेरी वाइब्रेशन सीधा गिर जाएगी, मैं नेगेटिव हो जाऊंगी। जैसे नेगेटिव होती है, वी बिकम वल्नरेबल टू द आउटसाइड एलिमेंट्स, whether it's depression, whether it's whatever. All these elements of negative elements around us will capture us. So better है कि हम पॉजिटिव स्पेस में रहें और बिलीव करें, ट्रस्ट करें इम्प्लिसिटली कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। आपको लगता है गुरुजी देख नहीं रहे जो हो रहा है दुनिया में? ऑफकोर्स देख रहे हैं, नेचर देख रही है, गुरुजी देख रहे हैं, एवरीबडी इज सीइंग। सो ये ऐसा है कि जब गुरुजी देख रहे हैं तो गुरुजी ठीक करेंगे ना। तो हम भी तो गुरुजी के बच्चे हैं ना, तो वो कैसे हमें अबैंडन कर देंगे। तो इसलिए आप पूरा विश्वास करके गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। तो आप मंत्र जाप करो, क्योंकि मंत्र जाप गुरुजी कहते थे करते जाओ कर्म टूट देने, शब्द सुनो कर्म टूट देने। जो भी हम करते हैं गुरुजी के कनेक्शन में वो कर्म टूटते रहते हैं। एंड ही ब्रिंग्स अस इनटू अ स्पेस ऑफ गुडनेस, हेल्थ, गुड हेल्थ। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को चंगा नहीं कर सकते तो मारा ना करो, किसी का चंगा बोल नहीं सकते तो मारा ना बोलो, निंदा तो छड़ ही दो, जज भी छड़ दो, लंबी लंबी गल्ला फोन पे किसी के बारे में छोड़ दो। ये आपका टाइम है, मी टाइम है, सेल्फिश हो जाओ। स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, बोलो ये मेरा टाइम है मेरे गुरुजी के लिए। और जब आपको वो आ जाएगा ना करना, जब गुरुजी आपकी प्रायोरिटी बन जाएंगे ना, टॉप प्रायोरिटी, तब आप देखना कि ग्लो ही ग्लो है। जय गुरु जी, थैंक यू जी, जय गुरु जी। बी ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। जय गुरु जी।